Hello, my name is Harsha Lal, and this lecture we are going to study strategic marketing planning steps in strategic marketing planning and its various components. Okay, so let us start. Okay, what is strategic marketing planning? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. फ्यूचर टाइम, जैसे हम लोग बोल सकते हैं फॉर 10 years और फॉर 20 years, प्लानिंग फॉर अहेड. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मार्केटिंग गोल्स, क्या गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड देन क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान, अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, structured strategy to achieve them. So it involves analyzing the market. सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, कस्टमर नीड्स क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, उसको किस तरीके का प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को चाहिए वो अंडरस्टैंड करना. देन टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द पीपल, एंड उसके बाद डेवलप करना ऐसा स्ट्रैटेजी जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हो, कंज्यूमर्स का नीड मीट हो. सो दैट इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर, designing the strategies for the future period of time so that consumer needs and preferences are being achieved and product is being provided, goals and vision of the organization is being met. So this is strategic marketing planning. अब what are the key steps, important steps क्या क्या है in strategic marketing planning? So पहला step है to analyze the situation. So सबसे पहले क्या करना होता है? SWOT analysis होता है to identify the strength. क्या क्या स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन का, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट एनालाइज करना. तभी तो पता चल पाएगा कि कौन कौन सा वीकनेस है जहाँ पर वर्क करने से वी आर गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अच्छा हो सके, रिजल्ट्स इम्प्रूव हो सके. फिर स्ट्रेंथ कौन कौन सा है उस पर वर्क करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना. लाइक एक लोकल कंपनी है दैट वांट टू गो ग्लोबल, so they have to take certain steps, certain opportunities. They need to collaborate with the international market so that they could expand, they could diversify. So opportunities को grab करना and threats को analyze करना. For example, government is making rules and regulations regarding the organization, so that has to be complied with, otherwise that could lead to certain threats for the organization. Because अगर वो कंप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को तो हिंड्रेंस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो टू एनालाइज all this situation is very important step for strategic marketing planning, analyzing the internal and external factors both. So strength and weakness becomes the internal factors and opportunities and threat becomes the external factors. Next step is for setting the marketing objectives. So दूसरा step है to set a very clear goals and objective and measurable goals, like sales have to be achieved, like 20% or 30% sales have to be achieved in the next say 1 year. So that are measurable, that could be achieved for the पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टन अमाउंट, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक वो अचीव हो सकता है. सो दैट शुड बी डिफाइंड. ऐसा अनरियलिस्टिक टाइप का गोल सेट नहीं करना है जो कि अचीव ही नहीं हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. सो वेरी क्लियर कंसाइज ऑब्जेक्टिव्स, गोल, विजन हैज़ टू बी created by the organization. Then the next step is to identify the target market. कौन सा सेगमेंट है कंज्यूमर्स का जिसका नीड फुलफिल करना है एक कंपनी को. दैट अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोडक्ट हैव टू बी मेजर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोडक्ट हैज़ टू बी डेवलप्ड. लाइक सपोज अ सर्टन सेगमेंट ऑफ द
consumers want only cars, and that will be of a premium quality. So for that, segment have to be created. Firstly, a segment have to be jotted down, and according to that the car has to be designed. So the step is to identify the customer segment and to fulfill their needs and demands. Product has to be made according to the customer's need and demand. So the third step is to identify the target market from the whole market. Then the next step is to develop the marketing strategy. अब दूसरा step हो गया कि first of all premium car has to be developed. So what should be the pricing of that car? How the design of the car will be? How the promotion will be done? Whether sales promotion है या फिर कुछ और टाइप का प्रमोशंस हो रहा है, कूपन कोड्स लगा करके प्रमोशन, किस टाइप का प्रमोशन देना है, so that more and more customers are attracted towards purchasing that car. And finally distribution. अब suppose कि कोई international company है that is making the car, and they have to transfer that car, they have to ship that car in the local area, in the domestic market. So which will be the best route through which the cost will be less? So distribution is very much important. It adds on to the cost of the final product. So एक strategy create करना, how the planning of the product will be done, what will be the pricing, packaging क्या होगा, promotion techniques क्या क्या employ करेंगे, labor force क्या होगा, and how the distribution, final warehousing and distribution will be done. So all this has to be decided. So that becomes the next step. Now the next step is to implement and final execution. This is to put the action. All the firstly analyzing of the situation is done, फिर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई करना कौन सा मार्केट स्पेस है, फिर वो मार्केट स्पेस के ऊपर काम करके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना, एंड फाइनली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है वो स्ट्रैटेजी को इन अ प्रॉपर एंड चैनलाइज्ड मैनर. आफ्टर द एग्जीक्यूशन मॉनिटर करना है कि सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग डाउन द परफॉर्मेंस, और जो भी एडजस्टमेंट अगर चाहिए, सपोज इन कार मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कैश विल बी रिक्वायर्ड और लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड. सो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ बजट, तो वो क्या करेगा. सो बजट है कि नहीं वो देखना, एडजस्टमेंट अगर करना होगा बजट को किसी और डिपार्टमेंट से निकाल करके अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में डालना होगा तो वो करना होगा. सो दिस स्टेप, द फाइनल स्टेप इज़ टू मॉनिटर all the performance, whether it is going on in the right direction or not, and to evaluate the performance. So these are the very important steps in strategic marketing planning. Now let us look at the various components of strategic marketing planning. The very first component over here is to decide what is the mission and what is the vision. So first, company का क्या purpose है, सबसे पहले वो डिसाइड करना. व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन wants to become the leading edtech for the future period of time. So ये विजन अचीव करने के लिए क्या क्या तरीका है, what are the objectives of achieving this vision, that has to be decided. Next step is again the situation analysis. तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा, एंड देन the organization has to analyze what are the strength weaknesses. स्ट्रेंथ में डिसाइड हो सकते हैं कि ब्रांड इमेज कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग गुड ब्रांड इमेज, resources of the organization is very well, they can utilize new lines of product, they can go into new arenas of manufacturing the product. So this becomes the strength. अब weaknesses क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, वीकनेस ये हो सकता है कि लेबर फोर्स ज़्यादा अच्छा से स्किल्ड नहीं है. सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स upscaling the skill of the
लेबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, सो दे विल ड्राइव वेरियस रूट्स सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कुड expand in the future period of time. They can go global and international. And then threats analyze करना, threats could be from the competitors, from the external environment. अब competitors pricing strategy अपना बहुत low कर दिया product का, so the other business person have to look into that and they even have to lower down their prices so that product could be sailed out into the market space. क्योंकि अगर हम अपना pricing को बहुत high रखें and the competitor is setting the price of that product at a lower level, तब फिर क्या होगा कि क्यों कोई कंज्यूमर आपके पास आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए अगर प्राइसेस मैंने बहुत हाई रखा है. इसीलिए कॉम्पिटिटर को देख करके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हैव टू बी सेट, सो दैट कुड बी अ थ्रेट. सो सिचुएशन को एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बनाना सो दैट फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड. The third component of strategic marketing planning is marketing objectives. So objectives ऐसा set होना चाहिए organization का so that could be achieved. So objective should be very much smart. अब smart क्या होता है? Smart is specific objective होना चाहिए, measurable, जिसको हम measure कर सके. Suppose 20% sales have to be achieved in the next 6 months. सो ये अचीव कर सकते हैं हम फ्यूचर पीरियड ऑफ द टाइम में. 20% of the organic food have to be distributed to the consumers living in the remote area within 1 year. So यहाँ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर ही मेजर कर सकते हैं कि 20% हो रहा है, हमको अचीव करना है फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ अचीवेबल. ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. वो रेलिवेंट होना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स अचीव नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल 50% और 70% सेल्स हैव टू बी अचीव्ड विद इन द नेक्स्ट 3 months. दैट इज़ अनअचीवेबल. सो ऐसा गोल्स सेट करना है जो कि अचीवेबल हो. सो दैट शुड बी रेलिवेंट और टाइम पीरियड लाइक 6 months 1 year इसके भीतर कंप्लीट करना है, मुझे अचीव करना है समथिंग. सो marketing objectives should be very much specific, should be smart goals. Now the next component is to target the market identification. So this step involves identifying the target market. कौन सा है, एक सेगमेंट क्रिएट करना है और कंज्यूमर ग्रुप को डिवाइड करना है एंड देन उसमें से एक सेगमेंट of the consumers have to be taken out and target becomes this. and उसके दिमाग में, कंज्यूमर्स के दिमाग में बार बार पोजीशन करना है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट लेना है. थ्रू दैट कुड बी थ्रू PR, थ्रू पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन, वेरियस प्रमोशन टेक्निक्स. सो बार बार एड्स दिखाना टीवी पे, 20% sales of during summer seasons, during winter seasons. So that is positioning in the mind of the selected segment of the consumer so that more products could be sold. Customers are attracted towards that and more products could be sold. So this step involves targeting the market identification, selecting the market segment to which the products could be sold. Next step is to analyze the competition, competitive analysis. So this step involves identifying the major competitors और वो लोग कौन सा strategy employ कर रहे हैं ताकि अपना गुड्स को सेल आउट कर सके मार्केट में. सो इफ़ दे आर यूजिंग द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मतलब कि लो प्राइजेस में सेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को. व्हेन दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इज बीन लॉन्च इनटू द मार्केट एंड इफ दे आर सेटिंग द प्राइजेस वेरी लो, सो द अदर कॉम्पिटिटर्स विल ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट इफ दे वॉन्ट टू गेट द मोर मार्केट शेयर. लाइक इफ पेप्सी is
setting the prices of their bottles low, then Coca-Cola Coca-Cola marketeers or Coca-Cola managers have to set their prices at that level only, so that the products are being sold into the market space. Next step, the next component is marketing strategy. Now this step involves identifying the 4 P's or 7 P's of marketing. मतलब कि इसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा, फीचर्स क्या होगा, कैसे ब्रांडिंग करना है प्रोडक्ट का, वो आइडेंटिफाई करना है. देन प्राइसिंग क्या सेट करना है, बहुत हाई प्राइस रखना है, कम प्राइसेस रखना है या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखना है, वो डिसाइड करना. देन टू डिसाइड प्लेस, किस टाइप का प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रोडक्ट का, वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड और थ्रू द ऑफलाइन मोड. क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एम्प्लॉय करना है, वन वे डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, देन टू द रिटेलर, देन टू द कंज्यूमर, और एजेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, राइट. और एजेंट्स को हटा करके या रिटेलर्स को हटा करके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर थ्रू होलसेलर एंड कंज्यूमर, इस तरीक़ा से सेल आउट करना है प्रोडक्ट का. सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या एम्प्लॉय करना है प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, ये डिसाइड करना. देन प्रमोशन, क्या टेक्निक्स, पीआर टेक्निक क्या होगा, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करना है, दैट विल बी डिसाइडेड. एंड इन 7 P's एक्स्ट्रा 4 P's के बाद 7 P's आता है. दिस इंक्लूड्स पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. सो पीपल में आएगा, अगर इफ़ पीपल हैव टू बी ट्रेंड, if people need to be trained, training have to be provided to the people or not. अगर ट्रेनिंग अच्छा नहीं है तो वो देना पड़ेगा. वर्कशॉप, सेमिनार्स हैव टू बी क्रिएटेड so that there will be upskilling of the people, right. फिर प्रोसेस, किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड करना, हाउ द प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर्स एट देयर डोर स्टेप, और वेदर द कंज्यूमर्स हैव टू कम in the shop for getting the product, like the Apple product have launched the online mode and the offline mode. In the offline mode, the consumers need to visit the store for getting the products, so that will be decided. And then comes the physical evidence. This is brand करना एलिमेंट्स को, लाइक पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. एंड वन मोर थिंग, इफ़ द कंज्यूमर्स आर sustainability conscious, then packaging have to be done according to that. Means Starbucks is giving coffee in cups, paper cups. So ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है. जो कंज्यूमर्स who are driven towards sustainability, उसको क्या चाहिए कि जहाँ प्रोडक्ट सस्टेनेबल, जो कंपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करता है वहाँ से जुड़े. सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैव टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स नीड, अकॉर्डिंग टू देयर थॉट, देयर थिंकिंग पैटर्न, so that consumers are going to be easily attracted towards getting the fetching the products. Next step is to allocate the budget. सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कि एनालाइज करना फंड्स कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है, एडवर्टाइजिंग में कितना फंड्स देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में कितना फंड्स देना है, कैंपिंग्स, वेरियस मार्केटिंग कैंपिंग्स होता है उसमें कितना फंडिंग प्रोवाइड करना है, ऑल विल बी डिसाइडेड अपॉन. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट द प्लान. सो इस स्टेप में क्या होगा, फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विल बी डन. And then regular monitoring, regular evaluation of that will be done. So at the time of implementation of plan जब implement कर रहे हैं, for example हम लोग launch कर रहे हैं campaign through social media. So यहाँ क्या involve हो रहे हैं, influencers involve हो रहे हैं ताकि प्रोडक्ट लॉन्च अच्छा से हो सके एंड दैट कुड ग्रैब अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस. सो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन वेरी राइट. नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल.
This step involves identifying the key performance indicators to measure the amount of success, कि सक्सेस अच्छा से मतलब जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट किए, जो भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की है वो अच्छे से फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द कस्टमर इंगेजमेंट. कस्टमर्स आर गेटिंग इंगेज्ड इन द वर्क और नॉट. अगर कैंपेन लॉन्च हो रहा है, सो दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इनटू, अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कंज्यूमर्स आर कमिंग इन टू द कैंपेन, ज्वाइनिंग और नॉट, वेदर द इंगेजमेंट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स इज इंक्रीजिंग और नॉट. एंड देन इंगेज होने के बाद वेदर द कंज्यूमर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड और नॉट, वेदर दे आर कन्वर्टेड फॉर अचीविंग, फॉर फेचिंग द प्रोडक्ट्स. मेन एम क्योंकि यही होता है कि सेल्स को इंक्रीज करना है. सो कैंपेन में जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं सेल्स के लिए, सेल्स ला पा रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दिस इम्प्लाइज दैट. नाउ द लास्ट स्टेप इज कंटिंजेंसी प्लानिंग. ये प्रिपेयर, लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग the organization to meet the uncertainties or failures that might happen at any level of strategic marketing planning. किसी भी लेवल में अगर कोई भी ऊपर नीचे हो या फिर परफॉर्मेंस मीट नहीं हो पा रहा है ठीक से, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है, बजटिंग ठीक से नहीं हुआ है, देन दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई करना वो सब अनसर्टनिटीज़ को और फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन टू रेक्टिफाई दोज फेलियर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एड कैंपेन फेल हो जा रहा है, कुछ एड कंपनी चलाई है एंड देन इट इज़ फेलिंग, देन द फोकस शुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और थ्रू स्पॉन्सरशिप. दैट कुड हैपन, ताकि बैलेंस आउट हो सके, कुछ भी चीज़ गलत डायरेक्शन में ना जाए एंड द प्रॉफिट्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मेट. So these are the important components of strategic marketing planning. So this was all about today's lecture. Thank you. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. For any queries you can comment. Thank you.